लेंस क्या है? व्हाट इज अ लेंस? पृथ्वीश এখন ওটা থাক, পরে করব। You can define me लेंस क्या है? और ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। और उसको और कुछ नहीं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग लेंस बोल सकते हैं। कैन वी से एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इज अ लेंस? क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस क्यों नहीं बोल सकते? डायरेक्शन चेंज कर हाँ, तो जेकोनो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट को डायरेक्शन चेंज कर देंगे। पर्टिकुलर में चेंज कर We'll call it a lens only and only if any one of the surfaces is curved. ठीक है? So write this down. An optical medium bounded by at least one curved surface. An optical medium bounded by at least one curved surface. An optical medium bounded by at least one curved surface is called a lens. Optical medium bounded by at least one curved surface is called a lens. Called a lens. So we have two types. एक है convex lens, एक है concave lens. ठीक है? Convex lens क्या होता है? Convex lens होता है जहाँ पर the edges are sharper than the central region. If the central region is thicker and the edges are sharper, thinner, then you call it a convex lens. And if the edges are thicker and the central region is thinner, you call it a concave lens. So this is a concave lens and this is a convex lens. Clear to all of you? Yes or no? Yes. Concave lens and convex lens. Clear to all of you? हाँ या ना? Now कुछ types है convex lens. This is called a biconvex lens. क्या बोला जाता है? Biconvex lens. Biconvex means both surfaces are convex. If one surface is plane, another surface is convex, we call it a plano-convex lens. Plano-convex lens. And if one side is concave, another side is convex, we call it concavo-convex lens. And this one is biconcave, of course. Plano-concave. Concave and convexo-concave. So it's a little difficult to draw convexo-concave, but most of the spectacles we use for correction of myopia, long sight, short sightedness, is goes for the convexo-concave lens. Most of us we use the convexo-concave lens. Convexo-concave लेंस। कभी अपना चश्मा खोल के देखना, ये एजेस जो है वो थिकर होता है, सेंट्रल पोर्शन थिकर होता है, बट इट इज one of the portion is concave inside, the outer portion bulges out, so that's why it is a convexo-concave. Mat Anjali, so is other types clear to all of you? Types लोगों ने अच्छा पढ़ा? Now a convex lens always gives converging action. Now why converging action? Look at this. I'm taking a biconvex lens. So if I take up a biconvex lens, and when we talk about lenses, remember we talk about thin lenses. What lenses? Right. Not thick lens. ठीक है? If it is a thick lens, जो हम लोग किया, वहाँ पर mention क्या हो रहेगा कि वो thick lens है. Thin lens mention नहीं रहेगा. सिर्फ लेंस मेंशन रहेगा, मतलब हम लोग थिन लेंस मेंशन। सो मान लो ये एक लेंस है जिसमें एक रे ऑफ लाइट गिरेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो एवरीवन ऑन द बोर्ड। इसका कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं ऊपर में। सो दिस वन मेक्स अ शेप सिमिलर टू अ प्रिज्म, राइट? एंड यू रिमेंबर प्रिज्म, कोई भी रे ऑफ लाइट आता है कौन सा डायरेक्शन में बेंड कर पाता है उसे? बेस की तरफ। सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओवर हियर, it bends towards the base, and if a ray of light is incident over here, it bends towards the base. Why? The base is on the upper side. So what happens? These rays intersect at a point. All right.
So that's why a convex lens gives converging action. Convex lens gives converging action, means it converges the rays of light at a certain point. Alright? अब concave lens के लिए क्या हो रहा है देखो. Concave lens के लिए when you look at it, it's like an inverted prism out here. So यहाँ पर ray of light आता है तो क्या होता है वो बेस की तरफ मतलब ऊपर की तरफ बेंड करता है, और यहाँ पर ray of light आता है तो वो किधर जाता है, वो भी बेस की तरफ बेंड करता है. Alright? So इसीलिए if you place them back, they will appear to meet at a point. So a concave lens gives diverging action. ठीक है. और ये रेस आके जहां पर मीट करता है, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके लिए रियल फोकस है और इसके लिए वर्चुअल फोकस. इसके लिए रियल फोकस है और इसके लिए वर्चुअल फोकस है. इज दैट क्लियर? सो यहां पर भी अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके लिए जो फोकस है ये वाला पॉजिटिव होगा और इसके लिए जो फोकस है नेगेटिव. हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेंस के लिए ना दो फोकस होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फोकाई लेंस के लिए. ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ये वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. डेफिनेशन क्या है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर वो मीट करता है एक जगह में या कोई भी पॉइंट से डाइवर्ज करने लगता है, तब वो पॉइंट को हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. तो ये भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और ये वाला पॉइंट भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस है. अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रहेगा, इफ देयर इज अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जिसके सामने एक कन्वेक्स लेंस हम लोग प्लेस करेंगे, कन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे, तो वो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा. तो ये पॉइंट को हम लोग F1 बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. और कनकेव के लिए क्या होगा, कनकेव लेंस के लिए रेज ऑफ लाइट एक जगह में कन्वर्जिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे रेज ऑफ लाइट आएगा, आके लेंस नहीं होता तो कहां पर आके कन्वर्ज करता, एक जगह में आके कन्वर्ज करता. लेकिन लेंस प्लेस्ड है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है. So that's why this point is called the first principal focus. First principal focus. All right.